ایران جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں پر واقع ہوتا ہے تو وہاں الزامات پاکستان پر لگائے جاتے ہیں. کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی؟ کیا یہی خارجہ پالیسی ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہم سے اس وقت ناراض ہیں، نالاں ہیں؟ اگر ان ملکوں کے اندر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو الزام پاکستان پر عائد ہوتا ہے، جو خارجہ پالیسی پر ایک سوالیہ نشان ہے. چین کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے ہم نے چائنا کو ناراض کیا ہے، ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے. ہم کس طرف پاکستان کو لے جا رہے ہیں؟ اور میں انتہائی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں سعودی عرب کے لیے کہ جنہوں نے ہر موقع پر اور آج وہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو ایم او یوز انہوں نے یہاں سائن کیے ہیں، مجھے اس بات میں یہ بات کہتے ہوئے جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے انتہائی میں حساس ہوں کہ گزشتہ حکومت نے 23 بل، لیکن مجھے اس پر افسوس ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو آپ میزبانی میں متحد رکھتے، کیونکہ سعودی عرب پر پوری قوم کا اتفاق ہے اور ہمارے عقیدے کا مرکز حرمین، اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے اس حوالے سے بھی قوم کو تقسیم کیا. جناب اسپیکر، داخلہ پالیسی تو معلوم ہے کہ سیاسی استحصال کے لیے اس حکومت کی ترجمانی باہر نیب کر رہی ہے، اور جب یہاں پر گزشتہ سیشن میں اپوزیشن نے نیب کے کردار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو حکومتی پارٹی نے نیب کی وکالت کی یہاں پر، اور یہاں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایوان کے اندر نیب کی وکیل کی حیثیت سے پیش ہو رہی ہے. جناب اسپیکر، جس طرح سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا، اس پر تمام سیاسی قوتوں کو تشویش ہے کہ اس قسم کا کردار وہ جمہوری حکومتوں کا نہیں ہوتا، جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتا. اور آج اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر یہ بحث شروع کرائی گئی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہاں فلسفے بیان کیے جاتے ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اسرائیل کے پاکستان کا موقف خود دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک متنازع ریاست ہے، نہیں کریں گے. اور آج پاکستان کا ایک سابق جرنیل اسرائیل کے حوالے سے میڈیا پر آ کر فلسفے بیان کر رہا ہے. اور جناب اسپیکر، یہ وہ جرنیل ہے کہ جس نے جیل سے نکلنے کے لیے بیماری کی درخواست کی تھی، لیے باہر جانے دیا جائے، اور اس کو جانے دیا گیا. آج پاکستان کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کو آپ نے جیل سے باہر علاج کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کس قسم کے رویے ہیں اور کس قسم کے کردار ادا کیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو اس وقت بحران کی طرف دھکیلا گیا ہے،
सऊदी वली अहद के पाकिस्तान में आने के बावजूद भी उस दिन के स्टॉक एक्सचेंज के आप आखिरी टाइम देख लें, उस वक्त मईशत को सहारा नहीं। बदिन आप स्टॉक एक्सचेंज के हर दिन के रिपोर्ट उठा लें, हमारी मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। शुक्रिया जनाब स्पीकर, हम 4 दिनों से मुसलसल इस फ्लोर पर आपसे वक्त मांग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को नजरअंदाज करना, मैं मुहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ मुत्तफिक हुई इस हवाले से कि लेकिन जब माहौल होगा नहीं मिल रहा और डिस्कशन होगी तो फिर बात होगा ना, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और ये आपकी अपोजिशन की अपनी आपस में भी एक तय कर ले कि किस तरह होगा। कोई अपोजिशन की अपनी हिकमत अमली नहीं है। अमली नहीं है जनाब स्पीकर, इनके लिए साहब आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा बोले हैं, मुसलसल आप बोले हैं। इस ऐवान को स्पीकर साहब, हमने आपसे पहले भी ताउन किया है, हम आपके साथ अब भी ताउन कर रहे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी मालूम नहीं, दाखिला पॉलिसी में नेब खेला जा रहा है। हम किसी के तर्जुमान नहीं है, सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन पसंद और नापसंद के ऊपर बुनियाद पर जो एहतसाब हो रहा है, हम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। हम साया मुमालिक हमें धमकियां दे रहे हैं, कौम आप तकसीम कर रहे हैं, लिहाजा हमें एक आवाज बनकर इस कौम के हुकूक का तहफ्फुज करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों लाड़काना में बाजावड़ के कबाइल 3 कबाइलियों को निशाना बनाया गया जो मजदूरी की गरज से लाड़काना गए थे, और मेरे हलके में एक कबाइली को उठाया गया, 1 हफ्ते तक वो गायब रहा, और जब मिला तो उसकी जली हुई लाश मिली। इंसानी हुकूक शर्मिंदा है इस वक्त पाकिस्तान में। जमहूरी हुकूक के हवाले से इस वक्त मुल्क के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, माशी पॉलिसी ये हुकूमत नहीं दे सकती। जमहूरियत इनके सामने शर्मिंदा है। जनाब स्पीकर, ये वो मसाइल है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस हवाले से सोचना। थैंक यू। आप जब वाइंड अप करें प्लीज। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस हवाले से सोचना होगा। हम मजीद इस हुकूमत को वक्त नहीं दे सकते, और मैं आप पर यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आपके वज़ीर आज़म ने यहां पर खड़े होकर अपोजिशन को कहा था कि आप अपने हक के लिए डी चौक आए, कंटेनर मैं दूंगा, लेकिन मैं आपके तवस्सुत से उनको बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की इस दारुल हुकूमत डी चौक में आएंगे, और इंशाअल्लाह जो कंटेनर आपने हमारे लिए तैयार किया है, इस कंटेनर समेत आपको यहां से निकालेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू आली मोहम्मद खान। मैं सर ये एक मोशन मूव करता हूं ताकि ये एजेंडा चलाओ, इसके बाद आप एक्सप्लेन कर लेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। आइटम नंबर 6 और 7 अली मोहम्मद खान प्लीज, ये मोशन मूव करते सर, बस मैं मोशन ये जी प्लीज अली मोहम्मद खान प्लीज जल्दी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई वुड मूव द मोशन। बाकी 6 और 7 जो हैं हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं कुरैशी साहब है। ईरान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर वाक़या होता है तो वहां इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं। कहां गई हमारी खारजा पॉलिसी? क्या यही खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज में जितने भी हमसाया मुमालिक हैं वो हमसे इस वक्त नाराज हैं, नाला हैं? अगर उन मुल्कों के अंदर कोई वाक़या होता है तो इल्जाम पाकिस्तान पर आयद होता है, जो खारजा पॉलिसी पर एक सवालिया निशान है। चीन के हवाले से, सीपेक के हवाले से हमने चाइना को नाराज किया है, हमने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाया है। हम किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? और
میں انتہائی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں سعودی عرب کے لیے کہ جنہوں نے ہر موقع پر اور آج وہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو ایم او یوز انہوں نے یہاں سائن کیے ہیں، مجھے اس بات میں یہ بات کہتے ہوئے جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے انتہائی میں حساس ہوں کہ گزشتہ حکومت نے 23 بل، لیکن مجھے اس پر افسوس ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو آپ میزبانی میں متحد رکھتے، کیونکہ سعودی عرب پر پوری قوم کا اتفاق ہے اور ہمارے عقیدے کا مرکز حرمین، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے اس حوالے سے بھی قوم کو تقسیم کیا۔ جناب اسپیکر، داخلہ پالیسی تو معلوم ہے کہ سیاسی استحصال کے لیے اس حکومت کی ترجمانی باہر نیب کر رہی ہے، اور جب یہاں پر گزشتہ سیشن میں اپوزیشن نے نیب کے کردار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو حکومتی پارٹی نے نیب کی وکالت کی یہاں پر، اور یہاں ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایوان کے اندر نیب کی وکیل کی حیثیت سے پیش ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، جس طرح سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا، اس پر تمام سیاسی قوتوں کو تشویش ہے کہ اس قسم کا کردار وہ جمہوری حکومتوں کا نہیں ہوتا، جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتا۔ اور آج اس حوالے سے کہ پاکستان کے اندر یہ بحث شروع کرائی گئی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یہاں فلسفے بیان کیے جاتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اسرائیل کے پاکستان کا موقف خود دیا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اسرائیل ایک متنازع ریاست ہے، نہیں کریں گے۔ اور آج پاکستان کا ایک سابق جرنیل اسرائیل کے حوالے سے میڈیا پر آ کر فلسفے بیان کر رہا ہے، اور جناب اسپیکر یہ وہ جرنیل ہے کہ جس نے جیل سے نکلنے کے لیے بیماری کی درخواست کی تھی، لیے باہر جانے دیا جائے، اور اس کو جانے دیا گیا۔ آج پاکستان کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کو آپ نے جیل سے باہر علاج کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کس قسم کے رویے ہیں اور کس قسم کے کردار ادا کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو اس وقت بحران کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد کے پاکستان میں آنے کے باوجود بھی اس دن کے سٹاک ایکسچینج کے آپ آخری ٹائم دیکھ لیں، اس وقت معیشت کو سہارا نہیں۔ بدن آپ سٹاک ایکسچینج کے ہر دن کے رپورٹ اٹھا لیں، ہماری معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ شکریہ جناب اسپیکر، ہم 4 دنوں سے مسلسل اس فلور پر آپ سے وقت مانگ رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی پارٹی کو نظر انداز کرنا، میں محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ متفق ہوئی اس حوالے سے کہ
लेकिन जब जनाब माहौल होगा स्पीकर नहीं मिल रहा, और डिस्कशन इसलिए होगी हम तो फिर बात होगा ना। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और ये आपकी अपोजिशन की अपनी आपस में भी एक पे कर ले कि किस तरह होगा। कोई अपोजिशन की अपनी हिकमत अमली नहीं है। अमली नहीं है जनाब स्पीकर। इनके लिए चतराई साहब आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा बोले हैं, मुसलसल आप बोले हैं। इस ऐवान को स्पीकर साहब हमने आपसे पहले भी ताउन किया है, हम आपके साथ नहीं, अब भी आपके ताउन इंशाल्लाह कर रहे ताउन होगा इंशाल्लाह हैं। आपके लेकिन जनाब स्पीकर इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी मालूम नहीं, दाखिला पॉलिसी में नेब नेब खेला जा रहा है। हम किसी के तर्जुमान नहीं है, सबका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन पसंद और नापसंद के ऊपर बुनियाद पर जो एहतसाब हो रहा है, हम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। हम साया मालिक हमें धमकियां दे रहे हैं, कौम आप तकसीम कर रहे हैं। लिहाजा हमें एक आवाज बनकर इस कौम के हुकूक का तहफ्फुज करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों लाड़काना में बाजावड़ के कबाइल 3 कबाइलियों को निशाना बनाया गया जो मजदूरी की गरज से लाड़काना गए थे, और मेरे हलके में एक कबाइली को उठाया गया, 1 हफ्ते तक वो गायब रहा, और जब मिला तो उसकी जली हुई लाश मिली। इंसानी हुकूक शर्मिंदा है इस वक्त पाकिस्तान में। जमहूरी हुकूक के हवाले से इस वक्त मुल्क के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, माशी पॉलिसी ये हुकूमत नहीं दे सकती। जमहूरियत इनके सामने शर्मिंदा है। जनाब स्पीकर, ये वो मसाइल हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस हवाले से सोचना। थैंक यू। आप जब वाइंड अप करें प्लीज। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस हवाले से सोचना होगा। हम मजीद इस हुकूमत को वक्त नहीं दे सकते, और मैं आप पर यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आपके वजीर आजम ने यहां पर खड़े होकर अपोजिशन को कहा था कि आप अपने हक के लिए डी चौक आए, कंटेनर मैं दूंगा। लेकिन मैं आपके तवस्सुत से उनको बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की इस दारुल हुकूमत डी चौक में आएंगे, और इंशाअल्लाह जो कंटेनर आपने हमारे लिए तैयार किया है, इस कंटेनर समेत आपको यहां से निकालेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। आली मोहम्मद खान, मैं सर ये एक मोशन मूव करता हूं ताकि ये एजेंडा चलाओ, इसके बाद आप एक्सप्लेन कर लेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। आइटम नंबर 6 और 7, आली मोहम्मद खान प्लीज। ये मोशन मूव करते हैं सर, बस मैं मोशन ये जी प्लीज अली मोहम्मद खान प्लीज जल्दी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई वुड मूव द मोशन। बाकी 6 और 7 जो हैं हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं कुरैशी साहब है। ईरान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पर वाक़या होता है तो वहां इल्जामात पाकिस्तान पर लगाए जाते हैं। कहां गई हमारी खारजा पॉलिसी? क्या यही खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज में जितने भी हमसाया ममालिक हैं वो हमसे इस वक्त नाराज हैं, नाला हैं। अगर उन मुल्कों के अंदर कोई वाक़या होता है तो इल्जाम पाकिस्तान पर आयद होता है, जो खारजा पॉलिसी पर एक सवालिया निशान है। चीन के हवाले से, सीपेक के हवाले से हमने चाइना को नाराज किया है, हमने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाया है। हम किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? और मैं इंतहाई नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं सऊदी अरब के लिए कि जिन्होंने हर मौके पर और आज वो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए जो एमओयूज उन्होंने यहां साइन किए हैं, मुझे इस बात में ये बात कहते हुए जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मुझे ये बात कहते हुए इंतहाई में हसास हूं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 23 बिल, लेकिन मुझे इस पर अफसोस है कि आपको चाहिए था कि पाकिस्तान को आप मेजबानी में मुत्तहिद रखते,
क्योंकि सऊदी अरब पर पूरी कौम का इत्तेफाक है और हमारे अकीदे का मरकज हरमैन, उस पर हमारा ईमान है। आपने इस हवाले से भी कौम को तकसीम किया। जनाब स्पीकर, दाखिला पॉलिसी तो मालूम है कि सियासी इस्तेहसाल के लिए इस हुकूमत की तर्जुमानी बाहर नेब कर रही है, और जब यहां पर गुज़िश्ता सेशन में अपोजिशन ने नेब के किरदार के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया, तो हुकूमती पार्टी ने नेब की वकालत की यहां पर, और यहां ऐसे मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऐवान के अंदर नेब की वकील की हैसियत से पेश हो रही है। जनाब स्पीकर, जिस तरह सिंध असेंबली के स्पीकर को और उनके खानदान वालों के साथ जो रवैया रवा रखा गया, उस पर तमाम सियासी कुव्वतों को तशवीश है कि इस किस्म का किरदार वो जमहूरी हुकूमतों का नहीं होता, जमहूरी मुल्क में नहीं होता। और आज इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ये बहस शुरू कराई गई कि इसराइल के को तस्लीम करने के हवाले से यहां फलसफे बयान किए जाते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसराइल के पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुद दिया था, और उन्होंने फरमाया था कि इसराइल एक मुतनाज़ा रियासत है, नहीं करेंगे। और आज पाकिस्तान का एक साबिक जर्नल इसराइल के हवाले से मीडिया पर आकर फलसफे बयान कर रहा है। और जनाब स्पीकर, ये वो जर्नल है कि जिसने जेल से निकलने के लिए बीमारी की दरखास्त की थी, लिए बाहर जाने दिया जाए, और उसको जाने दिया गया। आज पाकिस्तान के 3 मरतबा मुंतखब वजीर आजम को आपने जेल से बाहर इलाज करने की इजाजत नहीं दी। ये सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के अंदर ये किस किस्म के रवैये हैं और किस किस्म के किरदार अदा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुल्क की मईशत को इस वक्त बहरान की तरफ धकेला गया है। सऊदी वली अहद के पाकिस्तान में आने के बावजूद भी उस दिन के स्टॉक एक्सचेंज के आप आखिरी टाइम देख लें, उस वक्त भी मईशत को सहारा नहीं। बदिन आप स्टॉक एक्सचेंज के हर दिन के रिपोर्ट उठा लें, हमारी मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। शुक्रिया जनाब स्पीकर, हम 4 दिनों से मुसलसल इस फ्लोर पर आपसे वक्त मांग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को नजरअंदाज करना, मैं मुहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ मुत्तफिक हुई इस हवाले से कि लेकिन जब माहौल होगा नहीं मिल रहा और डिस्कशन होगी तो फिर बात होगा ना, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और ये आपकी अपोजिशन की अपनी आपस में भी एक तय कर ले कि किस तरह होगा। कोई अपोजिशन की अपनी हिकमत अमली नहीं है। अमली नहीं है जनाब स्पीकर। इनके लिए साहब आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा बोले हैं, मुसलसल आप बोले हैं। इस ऐवान को स्पीकर साहब, हमने आपसे पहले भी ताउन किया है, हम आपके साथ अब भी ताउन कर रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, खारजा पॉलिसी मालूम नहीं, दाखिला पॉलिसी में नेब खेला जा रहा है। हम किसी के तर्जुमान नहीं है, सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन पसंद और नापसंद के ऊपर बुनियाद पर जो एहतसाब हो रहा है, हम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। हम साया मुमालिक हमें धमकियां दे रहे हैं,
कौम आप तकसीम कर रहे हैं, लिहाजा हमें एक आवाज बनकर इस कौम के हुकूक का तहफ्फुज करना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों लाड़काना में बाजावड़ के कबाइल 3 कबाइलियों को निशाना बनाया गया जो मजदूरी की गरज से लाड़काना गए थे, और मेरे हलके में एक कबाइली को उठाया गया, 1 हफ्ते तक वो गायब रहा, और जब मिला तो उसकी जली हुई लाश मिली। इंसानी हुकूक शर्मिंदा है इस वक्त पाकिस्तान में। जमहूरी हुकूक के हवाले से इस वक्त मुल्क के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, माशी पॉलिसी ये हुकूमत नहीं दे सकती। जमहूरियत इनके सामने शर्मिंदा है। जनाब स्पीकर, ये वो मसाइल शुक्रिया। है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस हवाले से सोचना। थैंक यू। आप जब वाइंड अप करें प्लीज। जनाब वाइंड स्पीकर, अप करें। पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस हवाले से सोचना होगा। हम मजीद इस हुकूमत को वक्त नहीं दे सकते, और मैं आप पर यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि आपके वज़ीर आज़म ने यहां पर खड़े होकर अपोजिशन को कहा था कि आप अपने हक के लिए डी चौक आए, कंटेनर मैं दूंगा, लेकिन मैं आपके तवस्सुत से उनको बताना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान की इस दारुल हुकूमत डी चौक में आएंगे, और इंशाअल्लाह जो कंटेनर आपने हमारे लिए तैयार किया है, Thank you. इस कंटेनर समेत आपको यहां से निकालेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। अली मोहम्मद खान, मैं सर ये एक मोशन मूव करता हूं ताकि ये एजेंडा चलाओ, इसके बाद आप एक्सप्लेन कर लेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। आइटम नंबर 6 और 7, अली मोहम्मद खान प्लीज। ये मोशन मूव करते सर, बस मैं मोशन ये जी प्लीज अली मोहम्मद खान प्लीज जल्दी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई वुड मूव द मोशन। बाकी 6 और 7 जो हैं हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं कुरैशी साहब